एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ।
ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੁ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ,
ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹਿ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਇ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ। ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ।
केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद। सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध। कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे। ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करੈ आनंदो सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गोविंद का सदा लीजे। नाम गोविंद का सदा लीजे। नाम गोविंद का सदा लीजे। अलत सुख अलत सुख, नित सुख सिमरनो नित सुख सिमरनो। नाम गोविंद का सदा लीजै। नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे है कमाने पाप चिराने, मिटे है कमाने पाप चिराने। साध संगत मिल मुआ जीजे, साध संगत मिल मुआ जीजे। नित सुख सिमरनो नित सुख सिमरनो। नाम गोविंद का सदा लीजै। नाम गोविंद का सदा लीजै।
ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਮਾਇਆ, ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਂ ਦੁਖ ਹੈ ਮਹਾਤ ਕਹੈ, ਮਹਾ ਦੁਖ ਹੈ ਮਹਾਤ ਕਹੈ, ਆਸ ਪਿਆਸ ਰਮਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਆਸ ਪਿਆਸ ਰਮਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਭਾਗਵੰਤ ਲਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਭਾਗਵੰਤ ਲਹੈ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਸਰਨ ਸਮਰਾਤ ਆਕਾਸ਼ ਅਗੋਚਰਾ, ਸਰਨ ਸਮਰਾਤ ਆਕਾਸ਼ ਅਗੋਚਰਾ, ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬਤ ਪੂਰਨ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਰਬਤ ਪੂਰਨ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਹਲਤ ਸੁਖ ਹਲਤ ਸੁਖ, ਹਲਤ ਸੁਖ ਹਲਤ ਸੁਖ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ, ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम।
मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पाथ। कोट मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पाथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोट मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पाथ। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में कह रहे हैं। आओ शब्द को थोड़ा सा समझ ले, फिर आगे बढ़ते हैं एक एक पंक्ति को। कोट मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पाथ। जो इस जल को पी लेगा, राम नाम के जल को, गुरु गोविंद के नाम को, गुरु के नाम को, गोविंद के नाम को, भाव जो नाम जप लेगा, कोट मनोरथ आवे हाथ। बाबा आनंद सिंह जी के वचन। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हर एक की पूरी नहीं होती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मानो बैंक अकाउंट में किसी के पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, कुछ भी करता जाए, बहुत पैसे पड़े हैं उसके पास, 100 करोड़ पड़े किसी के पास करोड़ पड़े। अब किसी के बैंक अकाउंट में खाता ही नहीं है, खुला ही नहीं, यहाँ बैलेंस बहुत ही कम है, 0 बैलेंस है, वो क्या खरीद लेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे सारी सृष्टि नाम के आश्रय टिकी हुई है, नाम के आश्रय। नाम है तो सृष्टि है। जिसके हृदय में नाम बस जाता है, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, तो क्या अवस्था हो जाती है? वो जो मन में सोचता है उसकी इच्छा पूरी होने लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोट मनोरथ, 1 2 3 4 10 इच्छाएं नहीं, करोड़ों इच्छाएं उसकी हों वो भी पूरी हो जाएंगी। क्यों? गंगा जल गुरु गोविंद नाम। जो सिमरै तिसकी गत होवै, पीवत बहुड़ न जोन प्रमाण। जिसके हृदय में नाम शुरू हो गया ना, वहां उसके हृदय में गुरु आकर बैठ गया। जिसके हृदय में गुरु आकर बैठ गया, किस चीज की कमी? उल्टा महापुरुष कहा करते थे हमें अपने फुरनों पर कंट्रोल करना पड़ता है, ख्यालों पर। अकेले में जाकर क्यों बैठते हैं नाम जपने वाले? क्योंकि जब दुनिया में रहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी चीज को देखते हैं, मन कर पड़ता है, वो चीज मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें डर लगता है कि बैंक में से बैलेंस कम हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी से किसी ने सवाल किया था ना, कहले कि महापुरुषों मैं ना बहुत सारे साधु संतों के साथ रहा हूँ, कमाई वाले, पहाड़ों के कंदरों में बैठे हैं, मैंने उनके दर्शन किए, उनके साथ कुछ दिन गुजारे। मैंने देखा कि भिक्षा मांगकर खा रहे हैं। देने वाला 4 रोटी देना चाहता है, वो 1 ही लेते, उसमें से भी आधी कुत्तों को खिला देते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कपड़ा देता है, कपड़ा नहीं लेते, कोई कुछ देना चाहता है, लेते नहीं। ये निशानी होती है कमाई वाले महापुरुषों की, ज्ञानियों की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अज्ञानी तो कहेगा जितना मिल जाए थोड़ा दे दो, जितना सब दे दो मुझे। ज्ञानी कहेगा नहीं चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसने पूछा बाबा महार नाम सिंह जी, बाबा आनंद सिंह जी के मुर्शद, कि ऐसा क्यों? बाबा महार नाम सिंह जी सहने लगे, क्योंकि वो ज्ञानी है, कमाई वाले, उन्हें ज्ञान है कि जब भी किसी कोई वस्तु लेते हैं उसके बदले अपना सिमरन देना पड़ता है। इस सृष्टि में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सृष्टि में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर हम किसी का हक मार लेते हैं ना, हमें लगता है कि हमने बड़ी चालाकी से किसी का हक मार लिया। नहीं, देना पड़ेगा, कई गुना देना पड़ेगा और दुख आएगा अलग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई अपनी इच्छा से भी देता है तो उसके बदले भी आपका नित्यनेम, आपका सिमरन ट्रांसफर होता है उसे ऑटोमेटिकली। बाबा महाराम सिंह जी ने उस वक्त समझाया, कोई भोजन करा दे आपको, 5 पाठ श्री जपजी साहिब जी के करो उसके निमित्त, नहीं तो नित्यनेम में से आपका कैंसिल होकर उसे मिल ही जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भोजन के साथ रात को रहने का कमरा भी दे दे, सेवा भी करे, 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी को उसके निमित्त करो। नहीं करोगे तो तुम्हारे कमाई में से वहां ट्रांसफर हो ही जाने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार एक एक चीज के बारे में उन्होंने बताया।
कहने का भाव, जब किसी के बैंक अकाउंट में कुछ है ही नहीं तो इच्छा कैसे पूरी होगी। और यहां पर कोट मनोरथ आवे हाथ, चाहे कोई भी इच्छा हो पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गंगा जल गुरु गोविंद नाम, नाम भीतर चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। जम मार्ग के संगी पांथ, जिस मार्ग में जमदूत डराते हैं वहां पर ये नाम तेरे साथ चलेगा, जमदूत तेरे पास नहीं आ पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर? आओ फिर से गा लें। गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम कहने काम, एक एक बात पर कितना गहरा अर्थ है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, वो पूजा पूजा नहीं जिसमें नाम नहीं, वो जाप जाप नहीं जिसमें नाम नहीं, वो तप नहीं जिसमें नाम नहीं। क्योंकि पुरातन जमाने में लोग अपने शरीर को तकलीफ दे देकर उसे तप कहते थे, पर नाम नहीं शामिल करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, किस बात का जाप, किस बात की तप, किस बात का स्नान, अगर उसमें नाम शामिल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहने काम। कहने लगे जिसके हृदय में नाम शुरू हो जाए, गोविंद का नाम जिसके हृदय में बस जाए, उसकी अवस्था नेकामता वाली हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निष्काम, ये बहुत ऊंची अवस्था है। कई लोग कीर्तन करके पैसे नहीं लेते, उन्हें कहते हैं निष्काम कीर्तनी। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहते थे, नहीं पैसे नहीं ले रहा, वडियाई की भूख होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की भूख होगी, लोग वाह वाह करेंगे, भाई ये पैसे नहीं लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निष्काम उसे कहते हैं कि कोई कामना ना बचे, ना नाम की, ना धन की, ना निंदा की, ना उस्तत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था मिल जाएगी जो अगर हृदय में बस गया नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज माल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार। जो सुख राजा को मिलते हैं, जो सुख राजा के पास, सारे राज्य के सारे पदार्थ उसके, हर चीज उसकी। लोग जो सोचते हैं ना कि राजा इतना सुखी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं राजा सुखी नहीं होता। और जो सुख की वो विचार करते कि राजा के पास इतने पदार्थ हो इतना सुखी होगा, कहते वो सुख नाम जपने वाले को आत्मिक सुख मिल जाता है, वही जो राजा को लोग सोचते हैं कि राजा को मिलता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में वाणी तो कहती है सकल सृष्टि को राजा दुखिया, सबसे दुखी अगर कोई है इस संसार में तो वो राजा है। दुनिया भर की चिंता, दुनिया भर की टेंशन, राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हर का नाम जपत होए सुखिया। अगर उसके पास नाम है, राजा जनक राज में भी जोग कमाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आगे की पंक्तियां, सिमरत नाम पूरन आचार। अगर नाम जपता है तो उसका आचरण भी शुद्ध हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैरेक्टर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। महापुरुष वचन किया करते थे, आचरण को संभाल के रखो, आचरण ही सब कुछ है। आचरण गुरु के इतना नजदीक ले जाएगा। अगर ऊंचा आचरण है, गुरु से बहुत दूरी बना देगा अगर बुरा आचरण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। पर नाम क्या करेगा? समझो किसी का आचरण बहुत ही बुरा है, पर अब उसने पकड़ लिया नाम, तो सिमरत नाम पूरन आचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु से पूर्ण आचरण बख्श देगा, कैरेक्टर बख्श देगा, अब वो नहीं डोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
नानक दास एक किया विचार, बिन हर नाम मिथ्या सब छार। नानक दास एक किया विचार। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मैं विचार कर कर ये कह रहा हूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि बिना नाम के हर चीज किसी काम की नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो फिर तीर्थों पर स्नान क्यों ना हो। यहाँ पर बात मेन टॉपिक ये है, सोचे सोच ना हो वही जे सोची लख बार, एक बार नहीं चाहे लाखों बार तू तीर्थों पे स्नान कर ले, तेरा मन शुद्ध नहीं होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जल के मजन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे। बाणी कहती जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। अगर जल के स्नान से ही गति हो जाती है तो मेंढक तो रोज उसमें नहाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार मेंढक भी जोनियों में आएगा, तेरी भी जन्म मरण नहीं कटेगा, तू भी जोनियों में आएगा क्योंकि तू नाम नहीं जप रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओ जो सिमरे तिसकी गत होवे, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचे सोच न होई, जे सोची लख बार। भगत रविदास जी के जीवन की एक अद्भुत घटना, अद्भुत। शुक्र है इस घटना को भाई गुरदास जी ने अपने वारों में जगह दे दी, क्योंकि एक बार ना शायद नागपुर की घटना है, दास ने ये प्रकरण लिया और ये घटना सुनाई जो दास सुनाने जा रहे हैं। कुछ लोग आ गए, अब मन गढ़ित कहानियां सुना रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चमत्कारों की बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं किया करो, गलत है। मैंने कहा कौन सी गलत बात की? कहने की जो घटना दास सुनाने जा रहे हैं ना भगत रविदास जी के जीवन की, उसके बारे में कहने लगे ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने कहा आप कैसे मानोगे? कहने लगे वाणी प्रमाणित नहीं करती, कहीं पे लिखा ही नहीं है। तो भाई गुरदास जी की वार उस वक्त दास ने उन्हें पढ़कर सुनाई। भाई गुरदास जी की वार इतिहास में तो ये है ही कई किताबों में, पर जब भाई गुरदास जी की वारों में इसका जिक्र आ गया, उन्होंने डिटेल में वो घटना बताई तो वो चुप कर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास ने कहा शुक्र है भाई गुरदास जी वारों में इसका जिक्र कर गए, नहीं तो लोग आज ज्ञान लेने की बजाय ढूंढने बैठते हैं कि गलती कहाँ करे कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे ना, 4 प्रकार के लोग आते हैं संगत में, गूंगे सूंगे चुंगे डूंगे। एक जो यहाँ पर आकर सो जाते हैं, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। एक यहाँ पर आकर देखते रहते हैं कि कोई क्या पहन के आया है, क्या कर रहा है, यहाँ वहाँ ध्यान रहता है। एक जो बैठकर मिस्टेक ढूंढते हैं कि गलती करे कोई सी, उसे फिर
बताएं और दुनिया को बताएं कि इसने ये गलती की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथे होते हैं जो उत्तम सत्संगी गिने जाते हैं, जो बैठकर ध्यान से सुनते हैं, चुपचाप आते हैं, चुपचाप जाते हैं, घर में जाके फिर उस वाणी पर विचार करते हैं और उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं। असल में वो सत्संगी उत्तम सत्संगी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो यहाँ पर आकर भी गलतियाँ ढूंढ कर फिर उसे दुनिया को बताते हैं। बाबा नानक सिंह जी कहते थे इससे अच्छा तो वो सत्संग ना सुने, क्योंकि वो तो अपना सब कुछ जो पहले भी कमाए हुआ सब गवा के चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आया तो कुछ लेने था, देकर चला गया। घटना बड़ी प्यारी है। भगत रविदास जी को पिता ने घर से निकाल दिया कि काम तो कोई करता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम ही जपता रहता है। अब भगत रविदास जी बैठ गए उस रास्ते पे झोपड़ी डालकर, जो रास्ता हरिद्वार को जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी को दुनिया ने पहचाना, उनकी उस्तत होने लगी। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े राजा भी उनकी संगत करने आते थे। बाद में जब उनके बारे में लोगों को जानकारी मिली, राजा उनको मिलने के लिए बाहर इंतजार करते थे, पर भगत रविदास जी ने अपना जूते गाड़ने का, मोची का काम नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चाहे कर सकते थे, पर भगत रविदास जी क्या कहें उनके बारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी बैठे हैं, मोची हैं, जूतियां गांठते हैं। समय आया कि बड़े बड़े जत्थे वहां से गुजर रहे हैं, 100 के, 200 के, 500 के। कहा? गंगा में स्नान करने जा रहे तीर्थों पर। एक दिन भगत रविदास जी जूतियां गांठ रहे हैं, नाम में जुड़े हुए हैं। एक पंडित जी आ गए कि मेरी जूती टूट गई है, बना दो। भगत रविदास जी उनकी जूती बनाने लगे। बनाने के बाद जब उन्हें वापस दी, पंडित जी ने उन्हें तब तक बैठकर उनसे कहते रहे कि हम स्नान करने जा रहे गंगा पे, आप भी हमारे साथ चलो, पाप खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी मुस्कुराते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगे मैं काम छोड़कर नहीं जा सकता, मजबूरी है। भगत रविदास जी ने कुछ नहीं कहा उन्हें, पर जब उन्होंने उसका जूती बनाने के बाद एक धेला देना चाहे, एक टका कहा है, कहीं पर धेला लिखा है, धेला देना चाहो उस वक्त जो करेंसी होगी, तो भगत रविदास जी ज्ञान देने के लिए उन्हें, उस पंडित जी को कहने लगे पंडित जी काम करना, ये हमारी तरफ से वहां ले जाओ और गंगा जी को दे देना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर होता है ना, कोई हरमंदिर साहब जाते हैं, हम भी अपने दसवंध या कुछ दे देते हैं कि जो माथा टेक देना हमारी तरफ से। तो पंडित जी ने सोचा भगत रविदास जी भी अपनी तरफ से बेटा दे रहे हैं। तो जब वो मुड़े तो रविदास जी ने आवाज दी, भगत रविदास जी ने, पंडित जी एक बात सुनना, ऐसे ही मत गंगा में डाल देना, वहां पे खड़े होके कहना कि भगत रविदास जी ने ये भेजा है, और जब तक गंगा मैया हाथ बाहर निकाल कर वो ना ले लेना, मांग के हाथ फैलाकर ना ले, मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी सुन के हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या बात कह रहे हैं ये भगत रविदास जी। पर उनके कहने में ऐसी बात थी, ऐसी ताकत थी कि पंडित जी कुछ कह ना पाए, सोच विचार में डूबे हुए चले गए। और पंडित जी ने वहां पर पहुंचकर स्नान किया, जो भी करना था सब किया। तो अचानक याद आई, उस टके को देखा भगत रविदास जी के जो थे। अब आसपास लोग खड़े हैं, शर्मा रहे हैं कि कैसे बोलूं जोर से, लोग हंसेंगे। पर मन बनाया और जोर से कहा, हे गंगा मैया, ये भगत रविदास जी ने एक टका दिया है, रविदास जी ने आपको देने के लिए, और कहा है कि आप हाथ बाहर निकाल कर लोगे, आप हाथ बाहर निकाल कर ले लो। जब पंडित जी ने जोर से ये बात कही, आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पंडित जी पागल हो गए। पर सब ये बात, सारी घटना अंकित की है भाई गुरदास जी ने अपने वारों में, एक एक पॉइंट अंकित किया है, जो दास अभी पढ़कर सुनाएगा। धन गुरु नानक।
पर पंडित जी ने जब ये बात दूसरी बार कही, जल में से हाथ बाहर आया। सब हैरान हो गए। ये सारा दृश्य सारे उस खड़े हजारों लोगों ने देखा। जल में से हाथ बाहर आया, वो टका लिया। फिर दूसरा हाथ बाहर आया, उसमें सोने का कंगन जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए। वो कंगन देकर पंडित जी को आवाज आई कि ये कंगन मेरी तरफ से भगत रविदास जी को दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे हैरान, सब हैरान ये चमत्कार देखकर। पंडित जी सोच विचार में पड़ गए कि भगत रविदास जी की अवस्था क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि गंगा मैया उनका टका हाथ फैला कर ले रही है। जब ये घटना हो गई, पंडित जी अपने घर जाने लगे। मन को लालच ने घेर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लालच आ गई कि सोने का इतना बड़ा कंगन हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ बेशकीमती होगा। अगर मैं इसे बेच दूं, सारा जीवन सुख से व्यतीत होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मन में लालच आ गया, जौहरी को बेचने चले गए। जौहरी ने देखा पंडित जी को जानते थे, पहचानते थे कि ये राज दरबार में राजा के कथा सुनाते हैं जाकर। इनके पास इतना महंगा कंगन कहाँ से है? जरूर इन्होंने रानी का चुराया होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने सैनिकों को बुला लिया। वो जौहरी ने सैनिकों को बुला लिया। सैनिकों ने कंगन लिया, पंडित जी को गिरफ्तार करके ले गए राजा के दरबार में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना। पंडित जी खड़े राजा के सामने। राजा कहता है, बता कहाँ से चोरी किया। पंडित जी घबरा गए, क्योंकि राजा तो फांसी पे लटका देगा। पंडित जी घबरा के सब सच बता दिया कि ऐसे भगत रविदास जी ने टका दिया था। उन्होंने कहा था गंगा माता हाथ फैला कर मांगेगी तो देना। मैंने दिया, गंगा जी ने मुझे ये कड़ा दिया। राजा कहने लगा, एक तो चोरी किया, ऊपर से कहानियां बना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो बोल रहा है, इसे फांसी पे लटका दो। जब ये बात कही तो पास में राजगुरु बैठा था। कहने लगे, राजन, अगर किसी और का नाम लेता ना तो मैं तुझे ना टोकता, पर इन्होंने नाम लिया है भगत रविदास जी का। उनकी अवस्था इतनी ऊंची है कि निरंकार से एक मिक हो चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना झूठी नहीं हो सकती। अगर उन्होंने भगत रविदास जी का नाम लिया तो ये सच है। राजा कहने लगा, मैं नहीं मानता। तो राजगुरु कहने लगे, इसमें सोचने की क्या बात है? आपने कभी भगत रविदास जी के दर्शन नहीं किए, चलिए मेरे साथ, मैं दर्शन कराता हूँ। और फिर से उनसे एक टका लेते हैं, जाते हैं गंगा के तट पर, सामने सामने प्रत्यक्ष चमत्कार देख लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भी चल पड़ा। राजा के साथ कई सैनिक, पूरे लश्कर ही चल पड़ा। भगत रविदास जी के पास जाके रुके। भगत रविदास जी अपनी जूतियां गांड रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मोची साध संगत जी, एक मोची। गुरु तेग बहादुर साहब जी के वचन हैं कि नाम में इतनी ताकत है कि सारी सृष्टि को लाइन में खड़ा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी सृष्टि को एक जगह पर इकट्ठा कर सकता है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा, राजगुरु और वो पंडित जी भगत रविदास जी से माफी मांगी कि मैं जो कड़ा मिला था गंगा मैया से, मेरे मन में लालच आ गया और ये घटना वापरी। राजा कहने लगा, मुझे विश्वास नहीं है, आप मुझे एक टका दो, मैं गंगा में जाऊंगा, यही बेनती करूंगा गंगा मैया से। अगर हाथ बाहर फैलाकर उन्होंने नहीं लिया तो फिर मैं आपको भी फांसी पर चढ़ा दूंगा, ऐसे झूठ प्रचार के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी मुस्कुरा के कहने लगे, राजन, गंगा के पास जाने की क्या जरूरत है इतना दूर हरिद्वार में? आपको दूसरा कंगन ही चाहिए ना इसके साथ वाला, आपने यही देखना है ना, गंगा माता देती है। तो भगत रविदास जी आपने साथ संगत जी नोट किया होगा, और मोची से अगर कभी जूते बनवाए हैं, दास ने बहुत बार बनवाए हैं। पहले हमारे घर के पास में एक मोची हुआ करता था, उनके पास एक कांसा होता है, एक पत्थर का बर्तन होता है जिसमें गंदा पानी होता है, जिसमें वो अपने औजार डुबो कर रखते हैं, तीखे करते रहते हैं साथ साथ में। हर मोची के पास होता है, आज भी होता है। उस कांसे में हाथ डाला उस गंदे पानी में, भगत रविदास जी ने दूसरा कंगन निकाल के दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान, राजगुरु तो पहले ही जानता था। पंडित जी हैरान, ये कैसे हो गया?
ये कैसे दूसरा कंगन भी यहाँ पे आ गया? तो भगत रविदास जी कहने की गंगा मैया यहाँ पे रोज आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस बात को समझो, नाम की ताकत को। वाणी में शब्द आता है, वाणी में इतने इसके प्रति शब्द है ना कि गंगा बड़ी या गंगा को प्रकट करने वाला बड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ बड़ा के हर का दास। विचार करके देखो, आज हम वृंदावन में जाते हैं, कृष्ण जी, आज वृंदावन एक पवित्र स्थान माना जाता है, तीर्थ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कृष्ण जी खेले। तो वृंदावन बड़ा हुआ या कृष्ण जी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हम नानक सर जाते हैं, क्यों जाते हैं? बाबा नंद सिंह जी ने वहां पे तप किया, तो बाबा नंद सिंह जी बड़े हुए कि नानक सर। गुरु रामदास जी के दर पे जाते हैं, क्योंकि गुरु रामदास जी उस दर पे सारे गुरुओं के चरण पड़े, वहां पे जीवन बिताया। अगर कहीं और बिताया होता हमारे लिए वो तीर्थ होता। नाम जपने वाले की वजह से स्थान की महिमा है, स्थान की वजह से नाम जपने वाले की महिमा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महिमा नाम की है, और इस बात को वाणी प्रमाणित करती है। वाणी, आइए पहले भाई गुरदास जी की वारे समझ ले, फिर उसके बाद जो भाई गुरदास जी ने लिखा है पूरा समझ ले इस घटना को, ताकि जो सुन रहे हैं उनके मन में ये ना है कि भाई साहब ने मन गढ़ंत कहानी सुनाई है। भाई गुरदास जी, भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों को कुंजी का खिताब दिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। उनकी वारों में ये पंक्तियां श्रवण कीजिए, इस घटना को। भगत भगत जग वज्जया, चौचक्का दे विच चिमरेटा। भगत भगत जग वज्जया, चौचक्का दे विच चिमरेटा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। के भगत भगत करके भगत रविदास जी की शोभा चारों दिशाओं में फैल गई। क्यों? नाम। पाना गंडे राह विच, कुल्ला तरम टोय टोर समेटा। इतनी ऊंची अवस्था होने के बावजूद भी उन्होंने अपने मोचे का काम नहीं छोड़ा। रास्ते पे बैठे हैं झोंपड़ी में और लोगों की चप्पलें को गांड रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कर मैले चिथड़े, हीरा लाल अमूल पलेटा। भाई गुरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार एक मैले कुचैले कपड़े में हीरे जवाहरात लपेट कर रखे हों, इस प्रकार से भगत रविदास जी का जीवन है। झोपड़ी मैली, कपड़े मैले, और मन हीरे मोती जैसा अनमोल जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यों कर मैले चीथड़े, हीरा लाल अमोल पलेटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौवर्णा उपदेश दा, ज्ञान ध्यान कर भगत सरेटा। जो भी उनके पास आकर बैठा है उसे गुरु का नाम जपने का उपदेश देते हैं। चारों दिशाओं से लोग उनके पास आते हैं। अब आगे क्या हुआ? नावण आया संग मिल, बनारस कर गंगा थेटा। कुछ लोग उस वहां से गुजरे कि बनारस जा रहे हैं गंगा में स्नान करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उनमें से एक की चप्पल खराब हो गई, जो गांठते वक्त भगत रविदास जी ने उनसे चर्चा की और टका दिया। अब यहाँ पर सुनिए क्या कहते हैं। कड कसीरा सौंपया, रविदास गंगा की पेटा। भगत रविदास जी ने गंगा के लिए भेंटा दी कि ये ले जाओ, मेरी तरफ से गंगा मैया को दे देना। आगे लगा पूर्व अपीचदा, डिठा चलित अचरज अमेटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पे जितनी खलकत थी, जितना मेला लगा हुआ था, लगा पूर्व अभीजदा, बड़ा दिन था गंगा मैया का उस दिन। हजारों की गिनती में लोग थे।
सबने आश्चर्य कौतक देखा। क्या देखा? लया कसीरा हाथ कड़, सूत एक ज्यो ताना पेटा। लया कसीरा हाथ कड़, सूत एक जो ताना पेटा। कि गंगा मैया ने हाथ बाहर निकाल कर भगत रविदास जी का वो टका लिया। सब ने देखा। मैं नहीं कह रहा, भाई गुरदास जी की वारें कह रही हैं। लया कसीरा हाथ कड़, सूत एक जो ताना पेटा। इस प्रकार से वो कौतक हुआ जैसे भगत रविदास जी और गंगा यमुना में साठ गांठ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दूसरे से इतना लगाव हो कि गंगा मैया ने हाथ फैलाकर वो टका लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत जना हर माँ प्यो बेटा। कि भगत की अवस्था ये होती है कि परमात्मा ही उसकी माँ है, परमात्मा ही उसका पिता है, परमात्मा ही उसका बेटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब अगर ये वारे दर्ज ना होती, लोग कहते हैं घटना हुई ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भगत रविदास जी ने यहाँ पर क्या संदेश दिया? कहने लगे नाम की ताकत को पहचानो। भगत रविदास जी ने उस राजा को उपदेश दिया। कहने लगे राजन, ये बड़ी बात नहीं, कोई भी नाम जपने वाला हो, जब तीर्थों पर पापी जाके स्नान करते हैं, उनकी भावना होती है कि हमारे पाप लग गए, तो तीर्थ जो है वो अपने मैल कहाँ धोए, तो महापुरुषों के चरण धूड़ी में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महापुरुषों की चरण धूड़ी लोचते हैं। कोई महापुरुष आके मेरे पे स्नान करें, अगर नहीं तो वो खुद चल कर जाते हैं महापुरुषों के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसके पीछे इतनी घटनाएं हैं और वाणी प्रमाणित करते गुरु रामदास जी कहते हैं, श्रवण कीजिए। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करे उद्यम तूर साधु की ताई। ते करे उद्यम तूर साधु की ताई। किलविक मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक की पंक्तियां। ते करे उद्यम तूर साधु की ताई। वो उद्यम करती हैं, खुद चलकर जाती हैं, इस साधु की धूड़ मिल जाए, नाम जपने वालों की चरण धूड़ मिल जाए। क्यों? किलविक मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। अब यहाँ पर एक बात कितनी स्पष्ट हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि तीर्थों पे स्नान करने का कोई फल नहीं, यहाँ पर उसका खंडन नहीं, उस बात का खंडन किया गया। फल है ये तो ये क्यों कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे स्नान करके जाते हैं, भावना से अपनी मैल उतार कर चले जाते हैं, वो मैल से हम भर जाते हैं, हम मैल उतारने साधु के पास जाते हैं। भाव मैल उतरती है, और उतरती किनकी है? जो नाम जपते हुए जाते हैं, नाम जपते हुए आते हैं, वहां पर नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भावना से, श्रद्धा से, सारी बात तो श्रद्धा की है, नहीं तो पिकनिक स्पॉट है हमारे लिए। और किसी महापुरुष के लिए वही गुरु रामदास जी का दर झोलियां भरने का दर है, किसी के लिए पिकनिक स्पॉट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तीर्थों का खंडन नहीं किया, तीर्थों को जाने के तरीके का खंडन किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ये सोचते हैं कि केवल पानी के स्नान से पवित्र हो जाएंगे, तो ये गलत है। जब तक उस पानी में नाम शामिल नहीं, तो वो तीर्थ स्नान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये विषय बहुत बड़ा है साथ संगत जी, इस विषय को कल भी लेंगे। गुरु साहब जी कृपा करें, हर पहलू पर विचार हो जाए इसके ऊपर, हर पहलू, हर भगत, बहुत सारी घटनाएं हैं इसके ऊपर आधारित, वो सारी हम समझ लें ताकि दिमाग में बात बैठ जाए। ये पंक्ति सोचना हो वही हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। अब जब हम तीर्थों पर जाएं तो जाने का ढंग बदला हुआ होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक होता है परिवार के साथ जाना, एक होता है मित्रों के साथ जाना, एक होता है अकेले जाना।
इस बारे में कल विचार करेंगे। आइए अब समय हो गया, समाप्ति करते हैं। गुरु नानक मेहर करे। गुरु नानक ने आज सेवा शुरू करवा दी, सोचा सोचना हो गए, ये सोची लखवार। गुरु मेहर करे, सर पे हाथ रख के सेवा ले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये बात मत भूल जाना, क्या गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे इसकी गत होवे। पीवत बोड़ना जोन प्रमाण। पीवत पहाड़ना जोन प्रमाण। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे इसकी गत होवे। पीवत बोड़ना जोन प्रमाण। पीवत पहाड़ना जोन प्रमाण। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गुरु गोविंद नाम, 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 गुरु गोविंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होवे। जो सिमरे इसकी गत होवे। जो सिमरे तिसकी गत होवे। जो सिमरे इसकी गत होवे। पीवत बोड़ना जोन प्रमाण। पीवत पहाड़ना जोन प्रमाण। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम।
गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो। आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा। और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ। जो पर जाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए चुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोए राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता हो पुरी ततर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चेटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान। जब उद कर्क करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह कर्क करत हूँ कब मैं मिलत दे तर सब। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने मोजे उदार। तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा। तांको कर पान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जान। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव। आप आपनी बुध है जेती तो पिन पिन तो तुमरा लखा न जाए पसारा। बुझ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयोराव कई कोपा अंडज जेरज से तज कीने। बुझ खान बहु रच देने कहूँ कुल राजा हव बैठा। समट प्यो संकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप से अम्भव अब रक्षा मेरी तुम करो। संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता। सगल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी पर के दुष्ट दुखत हव मरे। उर्ख जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है आगे काल निकटने है। रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट संजाय निहारो आके ताप तनक मोहरो। और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाछ सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा। दुष्ट लोग ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी। हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय। दुष्ट लोग ते ले बचाए खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी। हाथ दे ले उबारी
ਸਰਬ ਟੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਨਾਮ ਕਰਾਂ ਸਮਰਸ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰਸਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿਟੋ ਦਿਸਿਆ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕੱਲਾ ਜਿ ਕਰਤਾਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਟੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਸ ਕੋ ਆਦਿਤ ਕਰੇ ਨਦ ਵਾਜੇ। ਮਨਨ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਟੇ ਜਾਨੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ। ਅਨਹਦ ਧੂਰੇ ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਾਤ ਜਿਸਰਾ ਬਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। 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 ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा पल पल शुक्र करा मेरे गुरु जी, पल पल शुक्र करा मेरे गुरु जी, हर पल शुक्र करा मेरे गुरु जी, हर पल शुक्र करा, हर पल शुक्र करा। सांसों के जुड़े तुमसे तार गुरु जी, तुम ही हो मेरे पालन हार गुरु जी, रखना बस चरणों के पास गुरु जी, हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा। पल पल शुक्र करा मेरे गुरु जी, पल पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा मेरे गुरु जी, पल पल शुक्र करा। काहे की चिंता किस बात का डर है, मेरे गुरु जी तेरा हाथ मेरे सर है, पल पल निभाया तुमने साथ गुरु जी, हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा। मुझ पर किए उपकार गुरु जी, सुंदर दिया परिवार गुरु जी, तुमने है बख्शी हर सौगात गुरु जी, हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा। शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा। मेरे घर आंगन को है स्वर्ग बनाया, अपने पराए का जी भेद मिटाया, किस्मत बदल गई मेरी गुरु जी, हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा। बिन मांगे सब कुछ पाया गुरु जी, अंधेरा मिटाया किया सवेरा गुरु जी, तेरे चरणों में अब रह
सपना मेरा साकार हुआ है। जो भी था सोचा मैंने आज हुआ है। सपने की ये साकार गुरुजी, हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा। मैं हूँ पतंग तुम डोर गुरुजी, बहाना देना कभी छोड़ गुरुजी। तुम बिन मेरा अब कौन गुरुजी, हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा। शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा। जब जब दुनिया ने हमें ठुकराया, चरणों में गुरुजी तुमने बिठाया। थाम के रखा मेरा हाथ गुरुजी, हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा। मेरा हर काम गुरुजी तुमने बनाया। दुनिया में मेरा तुमने मान बढ़ाया। मेहर करी तुमने मुझ पर गुरुजी, हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा। पल पल शुक्र करा मेरे गुरुजी, पल पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा मेरे गुरुजी, पल पल शुक्र करा। जो भी गुरुजी तेरा लंगर खाए, अपने जीवन के उसने कष्ट मिटाए। बेड़ा किया है तुमने पार गुरुजी, हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा। थम गई थी सांसें तुमने फिर से चलाई। अंग संग हुए गुरुजी आप ही सहाय। डूबती नैया मेरी पार लगाई, हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा। शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा।
कितना सुहाना ये पल, शुभ ये घड़ी है। गुरु जी की संगत मिलकर दर पे खड़ी है। अमृत वर्षा की बूंदे आज पड़ी है। हर पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।